Evening students. Today we are going to start with our first chapter in class 9th, that is NCERT syllabus, matter in our surrounding. In this chapter we are going to study about what is a matter. Topics that to be covered in this chapter is introduction, basic introduction, क्या होता है उन चीज़ों से start करेंगे. Second, what is matter. Third, characteristics of matter. Fourth, states of matter. Fifth, can matter change its state, and evaporation. Okay, so let us start with our chapter matter. Now what is a matter? Anything that occupies space and has mass and offer resistance. You can say anything that occupies space and has mass and offer resistance to any stress or force applied on it is known as your matter. Or you can say anything which occupies space and has mass is called matter, or in other words simple, anything which occupies space and has mass is known as matter. Space in the sense you can say volume also, anything which has certain volume. For example, air and water, sugar and sand, kerosene and petrol, carbon and sulfur, then minerals, all are different kinds of matter because all of them occupy space and has certain mass. Okay, so this is known as matter. So if we look around us, when you look around us, we can see a large number of things of different shapes, size and texture. Okay, many of these things are used by us in our everyday life. ये सारी चीज़ों को हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, द फूड वी ईट. The food we eat, it occupies certain space and has particular mass. Drink water, breathe in air and wear clothes. They are nothing but they all are matter. So we use a table, chair for studying and bed for sleeping. Now also you must be sitting in some table, some chair or sofa. So you are occupying a space. Sofa is a matter because it is occupying a space where you are sitting. You itself are matter. Okay? So this all are known as matter. So we also see other human beings, various animals, plants and trees around us. So these things like food, water, air, clothes, table, chair, human beings, animals, plants and trees, etc. All of this are what? All of this are matter. So the only condition for something to be matter is what? That it should has occupy space, it should occupy space and should has certain mass. ये दो condition होगी, that is when it occupies space and when it has a mass, then only you can say a thing is matter. Now pay attention. Nowadays, as we know, the things like friendship, love, affection, hatred, good manners, thoughts, ideas, taste and smell, etc. they do not occupy any space. Does they occupy? बस बोला जाता है कि I hate you this much. ठीक है, मतलब my friendship is beyond this way. Today I thought this much. Do you think it is a matter? No, it does not occupy any space and does not has any point. So from the point of view of chemistry, things like sorry, from the point of view of chemistry, things like friendship, love, affection, hatred, good manners, thoughts, idea, taste and smell, they are not considered to be matter, although they are used in our everyday life. ठीक है, तो maybe I think so the thing is cleared. What do you mean by matter? So I think so what is a matter is clear to you. Next, matter can be classified into number of ways. So when you see Metals can be classified into number of ways. During ancient time, philosophers said that all matters are made up of. Matters were initially known as पदार्थ. पदार्थ आपने सुना होगा ये चीज़, ठीक है, पदार्थ. Living or non-living thing or living or non-living things are made up of this basic 5 elements. Now, what are that basic 5 elements? That were Panch Tattva, also known as Panch Tattva: air, water, earth, fire and sky. दे वर ऑल नोन एज पंच तत्व. मतलब पहले इनिशियली जो हमारे फिलोसोफर्स थे एंशियंट टाइम के, हमारे पूर्वज, वो हमें क्या बोलते थे? दे इनिशियली सेड दैट एलिमेंट्स, सारी चीज़ें जो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है वो इन 5 चीज़ों की बनी हुई है. दैट इज़ नोन एज पंच तत्व. आपने सुना होगा पंच तत्वों की कहानी, ठीक है. नेक्स्ट, नाउ बट इन मॉडर्न डेज साइंटिस्ट क्लासिफाइड मैटर इन 2 ways. Nowadays our scientists has classified in the modern day technology, they have classified this metals into 2 ways, that is on the basis of its
इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़. किसके बेसिस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, अब कैसे क्लासीफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर इज क्लासीफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तीन चीज़ में क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. एंड ऑन द बेसिस ऑफ chemical properties it is classified into elements, compounds and mixture. ठीक है, सो ये जो क्लासिफिकेशन है लिक्विड, सॉलिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, जिसको आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है, ये वाला जो सेकेंड वाला स्लॉट है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. दैट इज इन योर सेकेंड चैप्टर. ओके, नाउ नेक्स्ट physical. Let us start with our chapter, that is the physical nature of matter. So matter is, what is the physical nature of matter? Matter is made up of tiny particles. So the particles of matters are very tiny first, and the particles of matters have space between them. The particles of matters are continuously moving, and the particles of matter attract each other. So these are the certain physical natures of matter, or you can say the characteristics of matter. So characteristics of particles of matter, as we have seen in previous slide also, the particles of matters are very very small. Second, the particles of matters have space between them. The particles of matters are constantly moving, and the particles of matter attract each other. अब ये चारों चीज़ों को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जस्टिफाई करेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के यहाँ पे बता रहे हैं, तो उसका प्रूफ क्या है कि ऐसा हो सकता है. सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स आर वेरी स्मॉल. सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन? आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे, दैट इज इन एक्टिविटी 1.2. dissolve 2 to 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट क्रिस्टल्स इन 100 ml ऑफ वाटर. पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल्स को हम 100 ml ऑफ बीकर में डिजोल्व कर रहे हैं. नाउ टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन. जो आपने फर्स्ट वाला स्लाइड में आप देख सकते हो कि जो पोटेशियम परमैग्नेट का सोल्यूशन उन्होंने लिया, 100 ml था, उसमें क्रिस्टल्स डाले 2 to 3, तो उसका कलर क्या हो गया? डार्क पर्पल हो गया. ठीक है, उसमें से 10 ml लिया एंड उस 10 ml को दूसरे 100 ml वाले बीकर में डिजोल्व किया, इसको यहाँ पे पोर किया. फिर उस सोल्यूशन में से आपने वापस 10 ml लिया और उसको दूसरे 100 ml बीकर में ट्रांसफ़र किया, दूसरे 100 ml बीकर में ट्रांसफ़र किया. फिर वापस वहाँ से सोल्यूशन लिया 10 ml दूसरे टेस्ट ट्यूब में और उस टेस्ट ट्यूब को इसमें डिजोल्व किया. सो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, कैन यू सी द शेड्स कलर? कलर जो है वो क्या हो रहा है? आप ये एक्सपेरिमेंट 5 to 6 टाइम रिपीट करोगे तो व्हाट डज इट शोज दैट इनिशियली जो पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल्स थे वो थोड़े लार्ज अमाउंट में थे, तो उसमें मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल धीरे धीरे क्या हो गए? टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में और डिवाइड हो गए. तो उसकी वजह से आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि क्रिस्टल्स का कलर देखो, सोल्यूशंस का कलर क्या हो रहा है? धीरे धीरे फेड हो रहा है. क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स अब क्या हो रहे हैं? इनिशियली यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स थे, फर्स्ट वाले में ज़्यादा थे, सेकेंड वाले में ट्रांसफ़र किए तो थोड़े कम हुए, थर्ड वाले ट्रांसफ़र किए तो थोड़े और कम हुए, और फोर्थ बीकर में ट्रांसफ़र किया तो और कम हो गया. तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो उसका कलर शेड क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम हो जाता है. तो दैट जस्टिफाई दैट कि जो पार्टिकल्स आपने पोटेशियम परमैग्नेट के दिए थे वो धीरे धीरे डिजोल्व हो रहा है और आप उसको कम माइन्यूट पार्टिकल सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हो, तो उसकी वजह से व्हाट वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स आर वेरी वेरी स्मॉल. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स आर वेरी वेरी स्मॉल. सो आई होप द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज क्लियर टू यू. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज particles of metals have space between them. So how can you say that the particles of metals have space between them? Again I am explaining you this on the basis of your activity. और ये एक्टिविटी आप डे टू डे लाइफ में करते हो. जो पहली वाली एक्टिविटी थी वो प्रैक्टिकली आपको स्कूल्स में देखा जाए, लैब में करवा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी. सेकेंड एक्टिविटी इज पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. सो हाउ कैन यू से, कैसे बोल सकती हो जो पार्टिकल्स के मैटर के जो पार्टिकल्स बने हैं उनके बीच में स्पेस कैसे है? कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? हाउ कैन यू जस्टिफाई? सो टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बीकर. बीकर में पानी लो एंड नोट इट्स लेवल. उसका लेवल नोट डाउन करना, वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे 100 ml है तो 100 ml मेजर करना है, वहाँ पे मार्क करना है. अब उसमें क्या करना है? या तो सॉल्ट लो या तो शुगर लो, विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड उसको डिजोल्व करना है. ओके, नाउ द सॉल्ट डिजोल्व्स इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज. आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जब आप उसके सॉल्ट को डिजोल्व कर रहे हो पानी में, उसका लेवल ऑफ वाटर चेंज नहीं हो रहा. जैसे आप इसमें देखोगे इन तीनों में, तो ये बीकर का लेवल यहाँ तक दिखाया है सब में,
जो वाटर का लेवल है, वो वाटर का लेवल उतना का उतना ही है। तीनों में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको? नो, तीनों में कोई भी चेंज नहीं हो रहे। जो वाटर का लेवल है दैट इज सेम इन ऑल दिस थ्री। इवन आफ्टर डिजॉल्विंग द वाटर, क्या लिया, पानी लिया था, उसमें मैंने शुगर ऐड किया और उसको अच्छे से स्टर किया। इनिशियली डिजॉल्व नहीं हो गया, बट कम्प्लीटली जब डिजॉल्व हो गया तो उसकी वॉल्यूम में फिर भी कोई चेंज नहीं आया। तो फिर वो शुगर या फिर आपका जो सॉल्ट है वो कहाँ गायब हो जाता है पानी में? कहाँ जाता है? दिमाग लगाओ। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी स्पेस होता है, ठीक है। जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, पानी है, उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के साथ, ऐसे वो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, तो उनके बीच में क्या है? स्पेस है। तो जो शुगर है, आपने शुगर जो ऐड किया वो धीरे धीरे उन मॉलिक्यूल्स को जाके क्या कर देता है? उन मॉलिक्यूल्स के स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। व्हाट डज इट डज? इट ऑक्यूपाइज द स्पेस। ये जो स्पेस है, ये मॉलिक्यूल्स है समझो शुगर के, तो वो जो इनके बीच में स्पेस है उसको जाके ऑक्यूपाई कर देता है, एंड उसकी वजह से उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। सो दिस वे यू कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them. Okay, so on the basis of this characteristic I can ask you, a diver in the sense जो swimming pool में dive करते हैं वो, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation shows? एक तो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि स्पेस है तभी तो वो जा सकता है ना। अभी जैसे आप ऑब्जर्व करो, आपके घर पे ही अगर आप एक्टिविटी करके देखोगे, तो अगर आपके सामने मैंने टेबल रख दिया है, मैं बोल रही हूँ अब ठीक है वो टेबल से को क्रॉस करके मेरे पास आओ, तो क्या आप टेबल के बीच में से आ सकते हो? नहीं, यू कैंट, यू कैन नॉट कम अक्रॉस इट. Okay, why you cannot come across it? Because it doesn't have space to travel between you. बट अगर आपने क्लासरूम्स में ऑब्जर्व किया होगा स्कूल्स में, तो टीचर्स वहाँ से पाथ में यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं. अगर स्टूडेंट्स बेंचेस 3 रोज रखें तो बीच में स्पेस रखिए, तभी तो टीचर वहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं. अब टीचर्स में से बीच वाले रो में से एकदम डायरेक्ट टेबल से टेबल्स गो थ्रू कर सकते हैं? नो. वाई? बिकॉज दैट टेबल्स डज नॉट हैव स्पेस टू कम. ओके, समझ में आया? सो दिस इज द प्रॉपर्टी कि मेटर्स ऑफ पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, तो वो स्पेस के में क्या हो जाता है, वो ऑक्यूपाई कर जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. Next characteristics is what? Particles of matter are continuously, or sorry, constantly, or you can say continuously moving. Now, before going to this, particles of matter are constantly moving. That is because of two things. That is the kinetic energy and your this diffusion. It is because of the kinetic energy and diffusion. Now what is kinetic energy? You know, ये term आपने सुना होगा फिजिक्स में भी. kinetic energy is nothing but related to motion. मतलब आपने जितनी एनर्जी प्रोवाइड किया और वो कितना फास्ट मूव कर सकता है, that is known as kinetic energy related to motion. And what is diffusion? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे diffusion का definition है, the intermixing of two or more different types of particles on their own is known as diffusion. उसको क्या बोलते हैं हम? diffusion, the intermixing of particles. अब ये क्या होता है वो भी मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. नाउ एक्टिविटी, हाउ कैन यू से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग? सो बेस्ट एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी भी नहीं, आप ऑब्जर्व करो, आपको जो मैं बोल रही हूँ आप अच्छे से सुनो. आप जब चाइनीज़ के स्टॉल या फिर आप रोड पे जा रहे हो एंड कहीं चाइनीज़ के स्टॉल है, तो वहाँ से फूड की स्मेल आपको दूर रोड तक भी आती है कि नहीं आती है? येस, इट कम्स. सो कभी आपने सोचा है कि वो फूड पार्टिकल जो आपसे थोड़ा 100 मीटर या 50 मीटर्स दूर बन रहा है, तो आप तक वो स्मेल कैसे आ रही है? ठीक है. नेक्स्ट, आप घर पे भी देख सकते हो, अगर आपकी मम्मी पूजा कर रही है, अगरबत्ती जला रही है, दैट इज़ नोन एज इंस्टेंट स्टिक. अगरबत्ती को क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंट स्टिक. तो अगर वो इंस्टेंट स्टिक जला रहे हैं घर पे, आप वो किचन में या फिर आपका जो भी मंदिर रूम है, जहाँ पे भी आपका टेम्पल रूम है, वहाँ पे जला रहे हैं, एंड आप यू आर सिटिंग इन द हॉल. सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, आप स्मेल, यू कैन स्मेल दैट अगरबत्ती स्मेल टिल द हॉल. येस, यू कैन, बट हाउ? Or you can say the another example, your mama is cooking some good food for you and you can smell that till the hall. Kitchen is a little bit away, 10 to 20 meters away. So how she is making the food in the kitchen, how can you smell that in the hall? Have you ever think about it? So you should think. Why? Because the particles of food mix with the particles of the air present and it travels to you, and it travels to you because of diffusion.
And how does the particles of the food travel? Because it has got some sort of kinetic energy. Kinetic energy हुआ तो जो फूड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो गए एंड उसकी वजह से वो आपके एयर पार्टिकल्स में मिक्स हुए और आप तक वो स्मेल प्रोवाइड हुई, ठीक है। वेरेस आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपको ये आइसक्रीम की स्मेल आती है? नहीं आती है कभी आइसक्रीम की स्मेल? फ्रिज में रखा है और हॉल में है, स्मेल आ रही है कि ऑटोमेटिकली? नहीं। क्यों? उसके पास जाओगे तो आएगी आइसक्रीम की स्मेल, उसके एसेंस की स्मेल आएगी, बट किचन से फ्रिज के किचन में से हॉल तक नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, ठीक है काइनेटिक एनर्जी बट बहुत कम है, तो काइनेटिक एनर्जी कम तो डिफ्यूजन भी कम। मेक नोट this thing, you should note, more is the temperature, more is the kinetic energy and more is the diffusion process. So how the particles of metals are constantly moving? Because of diffusion and kinetic energy. Okay, so now let us move to activity again. So activity here says that take some water in a beaker and put a drop of blue or red ink slowly on the sides of the beaker. आप जैसे ये वाला फर्स्ट बीकर देख सकते हो, दिस फर्स्ट स्पीकर। सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे इंक डाला है, ये इंक आप देख सकते हो ना, ये इंक है, उसे पुट आउट किया एंड उसको अनडिस्टर्ब रखा फॉर सम आवर्स। सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व दैट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक टेक प्लेस एंड दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लिक्विड। नाउ दैट इज ड्यू टू diffusion. What is the process known as diffusion? So the particles of gas molecules and the container में जो particles है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? मिक्स होना स्टार्ट कर रहे हैं. They start mixing with each other and they constantly move. So I hope this thing is clear to you. Second, मैंने आपको incense stick वाला example समझाया. This is also the particles of metals are constantly moving. Using this activity you can explain, that is activity 1.3. और इसके पहले मैंने आपको activity 1.4 समझाया कि there is one more proof कि how can I can say कि particles of metals constantly या फिर continuously move कर रहे हैं. Burn an incense stick अगरबत्ती बोला जाता है उसको, यहाँ पे आप देख सकते हो. This is your incense stick, you can see over here. Okay, in a corner of a room and move to the other corner of the room, as I said, of the same room. So the incense stick can be smelled in the other corner too. So that means that the particles of metals are continuously moving. They possesses kinetic energy, as I said, energy provide किया. अभी incense stick ऐसे के ऐसे रखेंगे तो स्मेल नहीं आती है, ठीक है, उसके पास जाना पड़ता है तब स्मेल आती है, बट ऐसे ही रखा जाएगा तो स्मेल नहीं आएगी. Possesses kinetic energy and the particles move faster. So with the increase of temperature, the kinetic energy of the particles also increases and it get mixed with the atmosphere. So this were the 4 characteristics of particles of matter. Which were they? First, particles of metals are very very small, that is they are made up of tiny particles. Second was, so the fourth, particles of metals are continuously moving. Okay, now the fourth is particles of matter attract each other. Fourth characteristic is particles of matter attract each other. Again, how can we explain this? Using the activity 1.8 or 1.6, 7 and 6 you can explain this. Proof, try breaking an iron nail. अभी मैं आपको 3 चीज़ दे रही हूँ. I am giving you iron nail, I am giving you a chalk or rubber band and I am giving you hammer. I am saying you hammer it. Which one breaks faster? Hammering, cutting or stretching? The iron nail will require the greatest strength, as you know, to break it, whereas rubber band require medium strength and the chalk requires little bit strength. Thus matter that requires greater strength are held together with the greater force of attraction, while the others are held together by the weak forces. This proves that the metals of particles attract each other, or you can say particles of matter attract each other. In this way you can say, okay, they have the way, जिसका forces of attraction ज़्यादा होगा जिनके particles में, तो उनके बीच में क्या होगा, आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए. So in this way you can say the forces of attraction, more is the energy required to break them. Okay, so these 4 characteristics are clear to you. Next is classification of matter. Now, how are matter classified? Metals are classified into 3 states on the basis of their physical properties. ठीक है, हमने starting में ही पढ़ा था. That is solid, liquid and gases. So matter are classified into 3 things: solid, liquid and gases, on the basis of their physical properties. Now, before going to this thing in detail, that is what is solid, what is liquid and what is gases, we have to remember certain terms, because on the basis of that terms we are going to classify their properties. So what are that terms? Terms to remember: rigid. Now what do you mean by rigid? Rigid means unbending or inflexible. For example, a stone is rigid, the one which you can't bend
or the one which is inflexible, ठीक है, they are known as rigid. Second, fluid. What do you mean by fluid? Fluid means a material which can flow easily. For example, water, air, they can flow easily, so they are known as fluid. That is a property of that. Next, diffusion. As I have already discussed it with you, what is diffusion? The intermixing of two particles or the intermixing or spreading out of a substance with another substance is known as diffusion. And how? That is due to the motion of particles. That is kinetic energy. Now, what is compressibility? Compressibility of any substance is a measure of its change in volume under the action of external force or pressure. मतलब आप कहीं पे external force या pressure apply कर रहे हो and उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंप्रेसिबिलिटी. ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है. नेक्स्ट, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पता करनी है तो उसका मास पता करो कि व्हाट इज इट्स वेट एंड व्हाट इज इट्स वॉल्यूम एंड दोनों को डिवाइड करो तो आपको उसकी डेंसिटी पता चल जाएगी. ठीक है, दिस आर द टर्म्स. सो लेट अस बिगिन द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. So let us start with the classification of matter. Okay, now properties of solid. Now what are solids? What are the properties? First, solids have definite shape and fixed volume. Yes, you can see आपके आसपास कोई solid देख सकते हो, book है, phone है, they are nothing but solid. So they have a definite shape. कोई ना कोई शेप है ना उनके पास और उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है. सेकेंड, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम. मतलब जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम है. जैसे आप यहाँ देख सकते हो जो इनके पार्टिकल्स है, स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स है, तो उसके बीच में जो स्पेस है वो मिनिमम होती है. ठीक है, सॉलिड के केस में जैसे ब्रिक है, फॉर एग्जांपल ये 3D इमेजिनेशन में मैंने ब्रिक, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये जो ब्रिक है, ब्रिक के पार्टिकल्स को यहाँ पे दिखाया गया है इस फॉर्म में. सो उसके पार्टिकल्स में अगर आप अच्छे से देखोगे तो कोई भी स्पेस दिख रही है इसके ब्रिक के पार्टिकल्स में? नो, यू कांट सी any space. Yes, it has, but it has minimum. Next, the force of attraction between the particles is maximum. जो forces होते हैं उनके attraction, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इनके जो particles है इनके बीच में जो attraction है वो maximum होगा. ठीक है, so इसको break down करने में सबसे ज़्यादा energy लगेगी. Next, fourth, the movement of particles is minimum. Yes, the movement of particles is minimum. It cannot move easily. खुद से मतलब पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते एक बार ऑक्यूपाई. जैसे इसमें मैंने बोला फॉर एग्जांपल, पे अटेंशन, ये जो मैं बोल रही हूँ कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए हैं, तो ये जो पार्टिकल्स है क्या वो इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक्स में? नहीं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत कम है. नेक्स्ट, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल. दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजीली. दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल. ओके, कंप्रेसिबल समझ में आया ना? आगे बोला था उसको कोई मेजर या फिर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और वो कंप्रेस हो गया वो. नाउ देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट. जो डिफ्यूजन होगा वो बहुत लीस्ट होगा. सॉलिड के साथ डिफ्यूज हो सकता है इजीली? नहीं. अब ये क्वेश्चन भी आएगा बहुत के माइंड में, बहुत सारे लोगों के माइंड में कि मैम जैसे आपने बोला कि सॉलिड इज़ नॉट कंप्रेसिबल. फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज. सो हाउ कैन यू से मैम अ स्पॉन्ज इज कंप्रेसिबल? स्पॉन्ज तो कंप्रेसिबल है तो क्यों वो सॉलिड है? आई सेड दैट कि इट हैज़ लीस्ट कंप्रेसिबल. येस, सॉलिड इज अ स्पॉन्ज, सो इट इज़ अ सॉलिड. सॉरी, स्पॉन्ज या डस्टर है जो आपका सोफे के जो स्पॉन्ज होते हैं, स्पंज, वो क्या है? वो सॉलिड है. बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें टाइनी टाइनी पोर्स है. तो वो पोर्स क्या करते हैं? एयर ऑक्यूपाई कर लेते हैं. आपके एटमॉस्फेयर से एयर ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, तो उसकी वजह से वो फूल जाते हैं, तो वो स्पॉन्जी दिखते हैं. बट जब आप उसको ऐसे उसका फोर्स अप्लाई करोगे और उसका एयर को बाहर स्क्वीज कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो वो कंप्रेस हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई क्वेश्चन भी आपका होगा यहाँ पे टेक्स्ट बुक में अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि स्पॉन्ज इज अ why sponge is considered to be a solid. So what about sponge? Is it a solid? Yet we are able to compress it. That is page number 4 आप 1.31 नीचे activity consider करोगे. So what about the sponge? Is it a solid? We are able to compress it. Why? Yes, why? Because sponge has tiny pores in it and that pores is occupied by the air. Okay, समझ में आया? Next है properties of liquid. What are the properties of liquids? Liquids have definite shape but
not definite shape but have fixed volume, so liquid takes the shape of the container. बेस्ट एग्जाम्पल आप वाटर बॉटल्स में पानी देख सकते हो, तो वो जिस वाटर बॉटल को लोगे उसका शेप ऑक्यूपाई करेगा. नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट मतलब बीच में, ठीक है, ना ही ज़्यादा ना ही कम. द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट. Again, the forces of attraction between the particles is also intermediate. Next, the movement of particles is also intermediate. Intermediate मतलब solid से ना ही ज़्यादा, gaseous से ना ही कम. They are less compressible. Again, the liquids they can be compressed, but they are less compressible. Their rate of diffusion is more than solid. Yes, the rate of diffusion is more than solids. Liquid को mix करते तो easily mix हो जाता है ना. Fruit, for example, आपका ये दो लिक्विड्स को मिक्स करना है एक दूसरे से, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से वाटर एंड मिल्क एंड वाटर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो बोथ आर लिक्विड्स. ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. गैसेस हैव नॉट डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम. ठीक है. दे टेक द शेप्स एंड ऑक्यूपाई द वॉल्यूम इन विच अ कंटेनर इज केप्ट. ओके. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ इज मैक्सिमम. जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मैक्सिमम है. एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विद द पार्टिकल इज मिनिमम. जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल होता है वो मिनिमम होता है. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. येस, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. गैसेस एक दूसरे से खुले हवा में कैसे घूमते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि इधर इतना है गैस ऑक्यूपाइड है, उतना उधर एक रूम के कोने में इतना गैस होगा, एक रूम के कोने में उतना गैस होगा. नो, गैसेस कैन मूव फ्रीली. They are the most compressible. Yes, gases are the most compressible. Best example is the gas which are you using, liquefied petroleum gas. जो आप सिलेंडर्स यूज करते हो वो गैशियस फॉर्म में CNG है. गैशियस फॉर्म में आपका मीथेन गैस है. मीथेन गैस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और फिर आप उसको यूज करते हो. तो बेस्ट एग्जाम्पल इज योर LPGs एंड CNG फॉर कंप्रेसिबिलिटी. ओके. I hope now the compressibility factor is clear to you. ठीक है. Next, the rate of diffusion is more than solid and liquid. Yes, two gases can easily mix with each other. Best example मैंने constant particles of constantly में आपको explain किया है. So I hope the particle properties of gases are clear to you. Next, why solids and liquid and gases have different properties? Now, what is the reason for solids, liquid and gases to have different properties? So the following properties of particles decide whether the given substance will exist as a solid, liquid or gases. So these are the three properties which decides whether a substance is liquid, solid और gases. First, the space between the particles. Space की मदद से बता सकते हो कि वो solid है, liquid है कि gases है. तो अगर space minimum है तो वो solid है, space intermediate है तो वो liquid है, and ज़्यादा है तो वो gas है. Forces of attraction between the particles. If the forces of attraction between the particles is strongest, then it is solid. Obviously वो एक particular shape ले लेगा फिर. Next, if it is less as compared to that of solid, then it is liquid, and if it is negligible, then it is gas. अगर आप freely move कर सकते हो कहीं पे तो उसके पीछे forces of attraction obviously कम है, space ज़्यादा है, मतलब वो gas है. Next, the amount of particles, movement of the particles, that is your kinetic energy. So अगर movement of particle minimum है तो वो solid है. ठीक है. अगर मैं वहाँ से easily move नहीं कर सकती अपना हाथ तो वो solid है. Whereas अगर थोड़ा उससे कम है तो वो लिक्विड है, और सबसे कम है तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम का वो मूवमेंट है तो वो गैसेस है. समझ में आया? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नेक्स्ट, ये देख सकते हो आप यहाँ पे पार्टिकल्स मूवमेंट, पार्टिकल्स बताया गया है यहाँ पे. मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस, लिक्विड, इजीली यू कैन सी कि देखो गैसेस में कितना स्पेस होता है. आप देख सकते हो कि गैसेस मॉलिक्यूल्स में कितना स्पेस है मूव करने के लिए. लिक्विड में गैसेस से कम है और सॉलिड में तो स्पेस बहुत कम है. जैसे टाइनी 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 जैसे आपको दिखेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा थोड़ा टाइनी 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 दिख रहा है तो वही है, उतना ही स्पेस है, उससे ज़्यादा स्पेस वहाँ पे नहीं है. टाइनी टाइनी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा. ठीक है. सो दिस इज़ द पिक्चर क्लियर. मे बी मॉलिक्यूल्स की वजह से आपको पता चल जाएगा कि सॉलिड में कितना स्पेस कम होता है, लिक्विड में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और गैसेस में तो आपके पास बहुत सारी स्पेस होती है उसको मूव करने के लिए. ओके. नेक्स्ट, so this were the characteristics of particles of matter we have studied. We have seen the properties of solids, liquid and gases. Now why solids, liquid and gases have different properties, that also we have seen. Okay. Now before going to the next type, that is the change of states of matter, you should know this thing also very clearly, that is
the common unit of temperature and the SI unit of temperature. Now, we use Celsius scale of temperature for measuring temperature in everyday life. Okay, Celsius scale हम measure करते हैं. Even our thermometers, melting point, everyday life जैसे melting point, boiling point, this spectra you use in degree Celsius, which is written as, in short, is written as 0 degree Celsius. The laboratory thermometers which you used for performing science experiments are all calibrated in degree Celsius. जो laboratory में हम experiment करने के लिए यूज़ करते हैं वो सारे डिग्री सेल्सियस में होते हैं. इवन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है आपको, या फिर फ़ारेनहाइट में होता है. Okay, so even the clinical thermometer which we use for measuring human body temperature is calibrated on Celsius scale of temperature. The melting point of ice on Celsius scale is 0 degree Celsius and that of water is 100 degree Celsius. Okay, now what is the SI unit? The other unit is Kelvin, which is the SI unit of your temperature, and it is used in the research work by the scientists. Scientists use it for the research work. What is the advantage of a Kelvin scale? A Kelvin scale is advantage is that all the temperatures will be positive. कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा. वेयर डिग्री सेल्सियस आपको नेगेटिव में भी मिलते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द एडवांटेज. एंड व्हाट इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट? जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पे मैंने दिया था आपको 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. रिमेंबर, हाँ, फिजिकल स्टेट्स उनके. वेरेस यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन स्केल में 273 एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 373. Now you can convert. What is the relationship? Conversion is possible. That is a relationship between Kelvin scale and this Celsius scale. So temperature on Kelvin scale is equal to temperature on degree Celsius plus 273. ठीक है, plus 273. So you can convert the Celsius scale to Kelvin scale, and Kelvin scale can be converted into Celsius scale. How can we convert? So just see how can we convert it. So convert the temperature of 25 degree Celsius to Kelvin scale. So Kelvin scale, अभी हमने रिलेशनशिप देखा, Kelvin scale is equal to degree Celsius plus 273. डिग्री सेल्सियस कितना दिया है आपको? 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 25 प्लस 273, सो दैट विल गिव यू केल्विन. सो अगर आपको सेल्सियस स्केल में दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? ऐड 273. ठीक है, सेम वे हम सेल्सियस से केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ कैन वी कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन? नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू सेल्सियस स्केल. मतलब अभी केल्विन से आपको किस में कन्वर्ट करना है? यू हैव टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस. सो हाउ कैन यू कन्वर्ट? जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर नाउ. हाउ कैन यू कन्वर्ट? सो दिया क्या है? केल्विन दिया है, किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है. सेम टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273. सो दैट इज डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है, तो डिग्री सेल्सियस गोज दैट साइड, तो दैट इज 300 माइनस 273. हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस यू गेट? 273. नाउ जस्ट मेक अ नोट ओवर हियर. यहाँ पे डिग्री सेल्सियस मेंशन करना ज़रूरी है, बट जब मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया तो डिग्री केल्विन लिखना ज़रूरी नहीं है. सिंपल के यूनिट के है केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, एंड डिग्री सेल्सियस के लिए आपको डिग्री मेंशन करना है. सिंपल सिर्फ टू ये आप ऐसे लिख के आओगे ना 27C, सो दैट इज़ रॉन्ग. यू हैव टू मेंशन कि 27 डिग्री सेल्सियस, एंड डोंट राइट इन दिस वे कि 27 डिग्री के. केल्विन में डिग्री मेंशन करना ज़रूरी नहीं है. ओके, नेक्स्ट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे एनसीईआरटी बेसिस पे इसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है. कन्वर्ट दिस टू दिस एंड दिस टू दिस. सो नेक्स्ट, नोट डाउन दिस थिंग. टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल वी हैव टू ऐड 273. अगर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ऐड करना है, और केल्विन टू सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है तो माइनस करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज in next video we will study, that is how matter can change its state. That we will study in our next video. Okay.